Welcome to JVDIS Vices. So today we are going to see the some current affair, and I want to inform you that please before the skip and before seeing the name of logo of this, this institution is not so much famous, but I guaranteed you whatever current affair till now you have read that this institute is much better than all other, even the PNIS current affair. It is better than current affair. It is not something I am telling without the proof. When you will see this video and before the video I will show the level of content and topic covered, you will praise this institute. And the founder of this institute is Krishna sir himself have cleared the prelims many times and even the mains, and he cleared the interview, and even he joined the he joined the UPSC in a DAO. So he worked in the space, I think space and DRDO. So he is the really has a very good content, and his course, the synopsis IS course, is has a very in synopsis and very in crisp format. So they have really good content. We are ignoring because we are going behind and thriving for the only famous institution or famous coaching institute which are there, but we forget to read these current affair. And please, this current affair is not only including the current affair or current topic, but the synopsis is current affair also include the contemporary issues. Contemporary issues means those issues which are were the continuously news in the 5 to 10 years. So those issues are also covered in this, and this is the most important valuable things what is in this PDF file in this institution current affair. So please don't skip. And as you know that UPSC generally asks one to two to three questions from the current issue and 4 to 5 questions which are the continuously used or before the 1 to 2 years current affair. So those current affair also include in this. So it will be really help you. So before the skipping, before the judging the institute and it is not famous something what to making the comment, please watch the content level before I have to satisfy you. I will show the content to what have we covered in this, and that are enormously very well institute and very well combined. So let us start without wasting the time. If you liked, so please subscribe, share, and comment, and please give your strength to us. Okay, so let us start. So first we will see the level of content is what they have put in this PDF, and generally you will like. So first they have divided the topics, when they write the convention and protocols. So they have given the all convention and protocol which were in use 5 to 10 years. So they first, no one institute will tell you these things. Even in the they not tell you in the generalist courses what is the difference between treaty, convention, and protocol. And we are many times see that these protocol are binding, these convention is binding. So they have given the difference between them, and they have really showed that which can be binding or not. So in the first level you can eliminate very many options in the UPSC and other exam. And then they have put the like a conservation, जो nature conservation के लिए institution है, like they these United Nations which happened in 1990, 1972, 1992, 1993. Then they have also put this side. So they have covered these topics very well. Then they have covered convention. Then they all put the what is land related convention, and they have all the news and organization land related in one form. Then water related, atmosphere related, sea level convention, even if COP, whatever the important COP, and whatever they have put anything like a 28 India COP, India's role in COP 28, all they have covered. And they have also see the pollution and hazardous substance convention. These convention we will very well know that they were asked in the UPSC. Sorry, 1 minute. Yes. So we know that these convention used to ask UPSC and CAPF CDS mining numerous times they have asked. Basel Convention, Stockholm Convention, Rotterdam Convention, Minamata Convention. So all these they had asked. So all the convention they have this convention.
even not mentioned in any institute regular book, but they have covered these convention too. And we know that in 2023 UPSC just asked you which are the convention, which are the program of IUCN, and that were not covered in any institute. So there are many questions which are not they have given, and if we cannot remember all this, we can just correlate that this is under this. So that much. And in environmental fund, you will not see the regular book even that they have given the all the funds. So they have like divided that key what are the funds which are under the World Bank. Then they have given all the funds. Only even you see the table of content, you can remember that under the World Bank we have climate investment fund, biocarbon fund, forest carbon facility and partnership for markets. Now you can see that these are the fund which are under the World Bank. Even you will not see the under what are the provision. You can just see that many times you can check you biocarbon fund under which. So IMF, World Bank, IUCN, UNFCCC, so UNCCD, UNCBD, UNEP. So you just know that no biocarbon fund is under the World Bank. Now to see the they have also mentioned that what are the global environment facility fund under which SIDA. फिर they have UNFCC fund. So adaptation fund, we know that adaptation fund in content agreement of COP, UNFCC fund. So these were the fund they have created. Today we will also discuss the fund. From the fund we will start. But before the fund we will also see the convention treaty and that difference. Then they have also see the यूनाइटेड यूरोपियन कमीशन फंड, यूरोपियन कमीशन के अंदर कौन कौन से फंड है, ईएनडीपी के अंदर कौन सा फंड है. Then they also got the miscellaneous fund. All the miscellaneous fund they have covered, even the, they have covered the green bond, they have covered the net zero alliance, owner alliance asset. So these were covered in this. Not, no one have covered this. No coaching institution have covered as much. So they have also put the bodies, organization, initiative, conference in one. So whatever the climate related initiative they have put one time, environmental related organization they have put, biodiversity related organization they have put in one, then forest related. See the level means they have combined these all things, institution, organization which were in the news. Then environmental law, act, regulation. See the they have covered all the laws, not only one two laws. And this PDF you will not see like a 300 to 400 page, just similar to the vision and other. So that much they have put. So they have environment related organization, then pest management, then other important initiative. See that. Then the climate change, offer the climate change के अंदर जितने भी initiative हैं सब कुछ इन्होंने global framework on climate service, all these they have covered it. Then global climate scenario, other related engagement, then cryosphere, ice melt in Antarctica, Arctic amplification, all these they have covered. Then all these like a climate policy initiative, just emergency, just emergency partnership, they have covered very well manner. See that in the then the pollution also they covered all the process. Green cracker even they have covered smoke, they have covered black carbon, ammonia, means all the pollution they have covered. Then water pollution, all the Atal Bhujan Yojana, groundwater extraction, water trading, they have covered. Then police plastic pollution, sorry. Then they got even the biopesticide or pesticide, then whatever the news like the polythene. This question was in the 2022. They have covered this thing and they have also covered in the 2022 even. It is not something which no, they are covered the contemporary issue that was very important. They also cover the biodiversity related all the conservation which are thriving in India like Project Cheetah, Elephant, Tiger, ban on drugs on all full for vultures. Very much news in the from the 5 to 6 year. I have alien species. See that there is convention even for the they have covered that. Kamlang tiger, then the tiger reserve which were in the news they cover this. Then they cover the forest. So in forest related whatever like accredited compensatory afforestation program, they have covered this. Then wetland related whatever the news they have covered, then related current affair for biodiversity, like the crypto see that level, misty, we know in my mangrove program, tropicalization. I know many terms which are they mentioned not in it, but we know that UPSC generally asks this question. Okay. So these are all the topic were covered in this and just 166 page. If you consider 160 and 10 page, please reduce 10 page. Means 150 page around. If it's net page count, so 150 page. And in 150 page,
They have covered even all things. Even you have forget to follow the regular week for the prelims, you can do that much. You will be a great position. So let us start, and it will be greatly very helpful for you. Please don't go and think that this institution is not as popular as other IS coaching, but their content is really made by the very well established and cleared person who has cleared UPSC many times. Even the content maker, many institutions have content maker which are preparing for that and attempting they want to they make the content for the institution. But these content are made by the who cleared the mains many times in prelim. All the teacher of synopsis is very good. If you want to this PDF, either you should visit the Synopsis IS courses or site. It will be freely available to you, or either you can message me, comment on that, and I in the comment I will put the PDF link. So please don't do anything like this current affair, this IS coaching is not popular. So let us, without wasting the time, even I wasted some time, but let us start. So first we will see that what are the difference between treaty, convention, and protocol. Okay, so let us see. So first is that definition we will say. These were the formal agreement between countries, two parties, members, or even nation. Okay, either it between countries, two party means either a two party like that, environment ministry or environment or either industries or two countries, these will form the agreement. So either two countries or member or even nation form has a formal agreement that we call the treaty. What is convention? We generally say the UNFCCC, UNCVD, and other convention. Agreement among multiple parties. So these were agreement not between, it is what the generally two parties. Treaty were generally between the two parties. Even can be more, but it's you know that in the when we say convention, it is generally not. It is mostly that most of the member parties are multi-member country for take part in it happens prior to the treaty being formed. So first, like we want to know that Vienna Convention formed for the ozone conservation और ozone depletion को रोकने के लिए. But after the Vienna Convention, we uh, came that many treaties, and after that treaty became like a Montreal Protocol and other things. So we came through this. The first convention, and convention led to the formation of treaty and protocol. Okay. Then agreement that allow alteration and amendment in treaty. Okay. So treaty में जो पहले देखो पहले convention like you can arrange first convention will be formed generally it is not always then treaty will be and if there is any amendment needed in the treaty it will become like a protocol. Okay, so we are seeing the Montreal Protocol, we see that Kigali Amendment in the Montreal Protocol. So these were very famous. So please remember to it. So these were like that. And again, what are scope covered in this? Okay, so if we see the scope, these were very broad covering various subject. But जो कन्वेंशन होते हैं वो स्पेसिफिक इशूज पे होते हैं लाइक हम देखते हैं कि यूएनसीवीडी तो यूएनसीवीडी किसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पे तो कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Okay, and after the protocol can be narrow or broad. So narrow in the sense is we see the Nagoya Protocol. In Nagoya Protocol, what we see there? 1 minute. Yes, there is some voice are coming outside because my room is in the side of the road. So please ignore that voice. I'm sorry for that. Okay, so as we see that ki, like a convention UNCVD, but protocol Nagoya Protocol, Cartagena Protocol, and also Kunming Montreal Biodiversity Framework. These were the treaty and protocol which were under the UNCVD. So पार्टिसिपेंट स्टेट हो सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों इसके पार्टिसिपेंट होंगे. इसमें भी वही स्टेट इंटरनेशनल है इसमें भी स्टेट इंटरनेशनल और तो पार्टिसिपेंट तो तीनों सेम ही होते हैं तीनों में. This is most important. Generally, they ask what is legal status of convention. Oh, yes, legal status of treaty first. So, legal status of treaty is legally binding. So, treaty generally are legally binding, but convention may be or may not be legally binding. Okay, there are many conventions which are not legally binding. So, convention may or may not. And these can be you can relate that as convention has many participants generally. So, these are not legally binding. Protocol we know that these are generally legal binding. Either we see that
if we want to see the treaty to be in the treaty, we can take the example of CITES. CITES was legally binding treaty. In convention, there are many conventions which are not legally binding protocols. Either we see that Montreal Protocol is a legally binding, Kigali Amendment legally binding, Nagoya, Cartagena, Invincibility, these were also legally binding. Negotiation often involves lengthy negotiation होता है, that is also involve negotiation and process can be negotiated as an extension what treaty extension. Okay, so okay, please remember first we has a treaty, then convention, then protocol. Okay, then rectification. So yeah, rectification. So it require rectification by signatories. They have also required or may require rectification depending on terms. Okay, so protocol may or may not require rectification. Okay? तो एग्जाम्पल के लिए यूएन चार्टर, पेरिस एग्रीमेंट, जिनेवा कन्वेंशन. जिनेवा कन्वेंशन generally were not legally binding. UN convention, Kyoto protocol, Montreal protocol, these were legally binding. So these are different difference between TT convention and protocol. Please do revise from that PDF, and it is in really very simple language. So very simple language, so you can revise very well. Okay. Okay. So now see that we will first see the uh, fund under environmental fund, various organizations. We first see that topic, and after that we will go to the act. Okay, so fund start from the, yes, environmental fund, it was from the 34. Let us start from the fund. So what are the environmental fund? And we know that in UPSC they most of the time they ask this environmental fund under work World Bank or other, or either this environmental fund give the fund to what one, and the fund in the climate change we know how much important to do they have, because the development what we see that the common but differentiate responsibility which come in the Kyoto Protocol, or even before that it has a prior connotation. So common but different responsibility. Developed countries need to supply the technology, cleaner technology, and fund to the developing countries to come in the same level. So for that, in all COP initiatives, the raising of demand of funds increase, and that's why because to adopt the climate change, funds is very important. So funds are prime facie condition to adopt climate change and mitigation. So for that, funds are going to very important for the UPSC even in the previous and upcoming year. So we will see the fund. So first we will see the environmental fund. So just remember that whatever we are going to see that fund which are the under the World Bank, and these were very important because World Bank fund UPSC has a obsession to ask these. The World Bank provide funds mainly for the mitigation and adaptation for the both developed and developing countries. Okay, it is not only for the developed countries, or it is not only for the developing countries, it is for the both. The World Bank provide. First fund, what we see that it is a climate investment fund, which were created in the 2018. It is implemented to bridge financing, means which are the gap in the financing and learning gap between now and next international climate change agreement. Okay, it includes sunset clause to ensure that funds activities do not prejudice outcome on even FCC negotiation. So what means sunset clause in this? Sunset clause in this is what like a you just think $100 what transfer to एनी फॉर द एनी प्रोजेक्ट. तो इसके लिए एक डेट होगा कि हाँ तुमको 2 ईयर में इसको यूज करना है इन एनी वे, यू हैव टू यूज इन 2 ईयर दिस फंड. सो इफ यू कैन नॉट यूज दिस फंड इन 2 ईयर, दिस फंड इज गोइंग टू लेस, मींस अगेन ये वर्ल्ड बैंक के पास पहुंच जाएगा और इस फंड के अंदर तो इट हैज अ सनसेट क्लॉज. ओके, सो two multi-donor trust. There are two multi-donor trust fund within climate investment fund. First is clean technology, and second is the strategic climate fund. Okay, so this fund is covered. So first we need to remember just that the climate investment fund is formed in the 2008, and it the bridge the financing implemented to bridge the financing means from the financing and learning gap between how now and next international climate change agreement.
So like there is always financing gap between that कि what the finance need to adopt the climate change and what they have get. तो जो इसके बीच में जो डिफरेंस है, जितना मिलना चाहिए और जितना मिला है उसको फाइनेंसिंग को ये रेगुलेट करेगा और कंप्लीट करेगा। तो इस क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड भी इसके अंदर है, स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है। ओके, तो याद रखना फिर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड क्या है जो कि इसी के अंदर है। तो क्लाइमेट इन दिस और द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड इज अ मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड विद इन व्हाट, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट under the World Bank. So, climate technology fund, it give the fund in general to the mitigation purpose. It provides new large scale financial resources to invest in clean technology. So, like a clean technology fund, so it will be provide the fund for the clean technology. Just remember as much, okay? Baki you can read. So, it many channeled through various multilateral development banks, okay, like Asian Development Bank, AIB, Asian Infrastructure Investment Bank. So ADB is the has a headquarter in the Avino in Manila, Philippines. This has a headquarter in the Beijing in China. Okay, so the Clean Technology Fund first will be go जो रीजनल बैंक है उनके पास जाएगा, जो रीजनल बैंक लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एशिया के डेवलपमेंट में और एशिया के क्लाइमेट चेंज में उनको टैकल करने के लिए प्रमोट करता है। तो ये जो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एशियन डेवलपमेंट बैंक को देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक कंट्रीज को देंगी कि हाँ अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी लाइए जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सके। ओके, तो मनी इसी के थ्रू आता है। एंड सेकंड वी हैव सीन दैट स्ट्रेटजिक क्लाइमेट फंड, इट इज आल्सो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंडर आता है। तो हेल्प टू लो इनकम कंट्रीज यूज न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज एक्सेस थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी यूज। तो ये जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, नए नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मीन्स क्लीन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक बायोगैस जनरेशन यू कैन सी, और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको क्लीन वे में लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो इन सब के थ्रू ये हेल्प करेगा उसमें। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं याद हो तो इतना तो याद हो क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आता है जो कि वर्ल्ड बैंक के अंदर है। एंड इसके अंदर कौन कौन से इसके अंदर इट सपोर्ट थ्री टारगेटेड प्रोग्राम। फर्स्ट इज द फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इन 2009, तो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम टू रिड्यूस द डिफोरेस्टेशन, we know that ki reduce the carbon emissions through the deforestation and forest degradation, it is agreement which generally formed in the 2012 I think. So see that 2012 United Nations Conference Sustainable Development. Okay, so remember that. तो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट विल बी प्रमोट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इतना जानो, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट इज दैट pilot program for pilot program for climate resilience, PPPCR क्या करेगा, तो टारगेटेड प्रोग्राम इज अ टारगेटेड प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। सो ये क्या करेगा, तो इट विल बी व्हिच क्लाइमेट रिस्क एंड रेजिलियंस को प्रमोट कर, मतलब क्लाइमेट रिस्क को कम करेगा और क्लाइमेट अडेप्टेशन को इंक्रीज करेगा, कैपेसिटी ऑफ क्लाइमेट अडॉप्टेशन इंक्रीज करेगा हर कंट्रीज का। ओके, तो यहाँ क्लाइमेट रेजिलियंस है तो यू कैन सी द ओनली कनेक्ट विद दैट कि क्लाइमेट अडॉप्टेशन को प्रमोट करेगा। एंड थर्ड इज दैट scaling up renewable energy program for low income countries. तो बिफोर सी द वॉट एवर दे हैव लिखन इन दैट, तो जस्ट हमको देखना है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेगा। सो फर्स्ट वी हैव सीन दैट वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन से फंड है, तो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर कौन से दो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है जो कि डोन कर मतलब फंड जिसके चैनलाइज होगा जैसे, तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड सिंपल थिंग है, क्लीन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगा इन डेवलपिंग कंट्रीज। स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड लो इनकम कंट्रीज को प्रमोट करेगा कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेस और रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें। फिर जो ये स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड है इसके अंदर फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को डिक्रीज करेगा, फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन प्रमोट करेगा। फिर पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस तो क्लाइमेट अडॉप्टेशन को प्रमोट करेगा। फिर स्केलिंग अप ऑफ रिन्यूएबल है तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज को रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्टेशन के लिए प्रमोट करेगा और फंड उसमें प्रोवाइड करेगा। इतना ऐसे याद। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड बायोकार्बन फंड, इफ एन यूपीएससी हैज आस्क्ड बायोकार्बन फंड is under the which institution or which organization, to World Bank.
It is for sustainable forest landscape. सो फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंड मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन और पूरा लैंडस्केप मॉडल पर एक लैंडस्केप मॉडल, कि दैट कि इफ देयर इज अ एनी लाइक अ देयर इज अ यू जस्ट सी दैट कि ये हो गया नेशनल पार्क या फिर ये हो गया फॉरेस्ट इतना, तो इस फॉरेस्ट को हम कंजर्व करेंगे एज अ बेसिस ऑफ लैंडस्केप मीन्स व्हाट एवर द things is under this we are conserve and we secure all these things, either the plant animal and sorry outside voice is coming, yes, so plant animal even the tribal communities all these um, have to security and promotion नहीं अंदर ये तो लैंडस्केप मॉडल होलिस्टिक अप्रोच है। तो बायोकार्बन इट्स सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज एफर्ट टू रिड्यूस इमिशन। ओके, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज का एफर्ट मतलब इमिशन को रिड्यूस करने के लिए प्रमोट करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट बायोकार्बन फंड इतना याद रखो। तो बायोकार्बन से याद रख सकते हो कि कार्बन रिड्यूस करना है तो फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा, फॉरेस्ट अफोरेस्टेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब तो आराम से, बस लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि किसके अंडर काम करता है। थर्ड इज दैट व्हाट इज थर्ड फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटीज। तो दिस इज द फंड विच इज आल्सो अंडर द वर्ल्ड बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी मतलब फंड, फैसिलिटी जनरली कन्वर्ट टू द फंड्स। ओके, तो पार्टनरशिप फॉर द फॉरेस्ट कार्बन मतलब फॉरेस्ट वर्क एज अ कार्बन सिंक। तो हमको फॉरेस्ट के जो कार्बन स्टॉक है सीडेड टू इनहेंस एंड कंजर्व फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। तो दीज वर अंडर द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है हमको कैसे कंजर्व होगा जब हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन है फॉरेस्ट का कटिंग नहीं करेंगे। ओके, तो वैसे हमको वो करना है। ओके, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन को कम करना है। तो डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा तो इमिशन कम हो जाएगा। ऐसे देखो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफॉरेस्टेशन किसके लिए किया, तो आप जहाँ भी अभी लकड़ी यहाँ से मिली भाई या आपने जहाँ यूज किया उससे इमिशन हुआ, इमिशन इंक्रीज हो गया इसके पहले से, तो इसकी लकड़ी से और इसके जो प्रोडक्ट बने उससे। और सेकंड थिंग इज अब जो इमिशन हुआ वो तो अब यहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता। तो वो हम केवल पेड़ पौधों को न काटकर कार्बन सिंक ही नहीं कर रहे हैं बल्कि कार्बन इमिशन को कम भी कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ये कार्बन को टेक भी करेगा ना, ये विल बी टेक द कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए। ओके, नेक्स्ट इज दैट तो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी अंडर द वर्ल्ड बैंक। तो अब तक हमने 3 फंड देखा जो वर्ल्ड बैंक के अंडर है मेनली। फर्स्ट हमने देखा CIF कार्बन इन्वेस्टमेंट फंड जिसके अंदर था क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी फंड क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड second was that climate partnership something like fund was that, and second we have see that biocarbon fund what I have told you very important biocarbon fund, and third is the forest carbon partnership facility. Okay, and fourth is that partnership for market readiness. Okay, it's aim to use market instrument to scale up mitigation effort in middle income countries. तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब हम उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे जिससे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो कम लाएगा। हम कह सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड दीज आर मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इंस्ट्रूमेंट, we will promote these in the developing country to mitigate the effort, scale up and mitigation effort, mitigation for what, mitigation of climate change impact और mitigation of climate change means अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अडोप्टेशन क्या है, अडोप्टेशन मतलब अब तो जो डिजास्टर आना था आ गया है, अब उसको आपको अडॉप्ट करना है कि हाँ अब ये तो मतलब कुछ नेचुरल डिजास्टर जैसे आप साइक्लोन खत्म नहीं कर सकते वो फॉर्म होगा बट आपको अडोप्टेशन कैपेसिटी कितनी है कि अगर साइक्लोन आए तो आप अडॉप्ट कैसे लेके। अर्थक्वेक आप रोक नहीं सकते कि अंदर जाकर पृथ्वी को पकड़ लोगे कि हाँ आप नहीं निकलने देंगे एनर्जी, सो यू कैन नॉट स्टॉप अर्थक्वेक बट यू कैन decrease the level of impact and that called the adaptation। and how will it decrease कि जिसके भाई मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो होम बन रहे हैं जो घर बन रहे हैं वो उसको अडॉप्ट करने के लायक हो, मतलब उसमें ऐसी इंजीनियरिंग ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो रिड्यूस कर दे इम्पेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। और फिर जो लाइक इन साइक्लोन तो आप कैसे अडॉप्ट करोगे, तो साइक्लोन में जो कम्युनिटीज हैं जो मतलब in the like they are say their home is around in and around that
ओशियन, और तो हम उनको जो कम्युनिटीज हैं उनको वहां से लाकर कहीं ऐसे अच्छे प्लेस पर उनका सेटलमेंट करा देंगे। तो जब साइक्लोन आएगा, जब सुनामी आएगी, तो उनका वहां पर लोग ही नहीं होंगे, तो वो मतलब इम्पैक्ट कम होगा। या फिर अगर कुछ कम्युनिटीज जो हैं, वो उन कम्युनिटीज को हम अच्छा घर बना कर देंगे कि अगर सुनामी आए, साइक्लोन आए, तो इम्पैक्ट कम हो उन पे। ओके। ओके, next is that global environment facility. We know that this is very important. The global environment facility provides grant funds to developing countries for project in four focal area. Four areas. Just to say that, like in climate change, biodiversity, international water, and ozone depletion. So first we see that comment about the global environment facility. So it is an independent financial organization set up under the World Bank. So it is set up under the World Bank, बट इन 1992 जो रियो अर्थ समिट हुआ था, उसमें ये वर्ल्ड बैंक से आउट कर दिया गया और ये सेपरेट इंस्टीट्यूशन बन गया। तो ये ओरिजिन तो इसका वर्ल्ड बैंक से हुआ था, मतलब जब इसका ओरिजिन हुआ तब तो ये वर्ल्ड बैंक के अंदर था, बट अब वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं है। इट इज नॉट अंडर द वर्ल्ड बैंक करंटली। तो ग्लोबल इसका जेनेसिस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वाज एस्टेब्लिश इन 1991 एज अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट फंड। तो फैसिलिटी मतलब फंड ही होता है, with the goal of achieving global environmental benefit। हेडक्वार्टर या इसके ये कहाँ पर इसकी सेटिंग होती है, तो वाशिंगटन डीसी, याद रखना। ओके। ओके, तो हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होती है इस ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये पूछा गया है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी वर्क विद द वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी। तो थ्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी, टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव। वर्ल्ड बैंक हैज सर्व्ड एज a trustee of global environment facility trust fund। ओके, तो ग्लोबल ट्रस्टी जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है, उसका ट्रस्टी कौन देखता है, तो वर्ल्ड बैंक देखता है सिंस 1994। फिर मेंबरशिप कितने, 186, नहीं याद रखने की जरूरत नहीं है। द इंटरनेशनल डे, सब भाई रहने दो है। तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस को ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। तो फर्स्ट इज कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब यूएनसीवीडी। ओके, जो कि ये भी एक अर्थ समिट का यू कैन से इसका जेनेसिस भी अर्थ समिट में है 1992 के। देन यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी, जो कि डेजर्टिफिकेशन पे काम करता है, लीगली बाइंडिंग है, ओनली कन्वेंशन है जो डेजर्टिफिकेशन पे काम करता है। देन स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है उन पर वर्क करता है, इसको भी ये फंड प्रोवाइड कराता है। एंड मिनीमाता कन्वेंशन, मिनीमाता हमको पता है मरकरी की बात करता है। ओके, तो ये इनको ये फंड प्रोवाइड कराता है। तो फिर से देख लो, यूएनसीबीडी, यूएनसीएफसीसी हैं, यूएनसीसीडी, पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, या स्टॉकहोम कन्वेंशन, मिनीमाता कन्वेंशन, ऐसे याद रखना। अब हमको ये बताना है, ये याद रखना, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इज इट नॉट लिंक ऑफिशियली टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन पर काम करता है, बट इट सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल इन कंट्रीज विद इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन वो कंट्रीज हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में मेंशन है। क्योटो प्रोटोकॉल जब हम पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन। तो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन इन कंट्रीज को, तो ये डायरेक्टली ऐसे याद रखो, डायरेक्टली जो है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को फंड नहीं प्रोवाइड करता, बट इनडायरेक्टली ये इम्प्लीमेंटेशन और प्रोटोकॉल मतलब इसमें हेल्प करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की इम्प्लीमेंटेशन। तो अब हमको ये पता होना चाहिए। ओके, इट फोकस ऑन इंटरनेशनल वाटर्स, मतलब इंटरनेशनल वाटर्स में भी, तो ये सब तो मतलब जनरल टर्म है, यू शुड रिमेंबर दैट कि अगर ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन्वायरमेंट के बारे में बात करती है तो ये जनरली सबको तो करिए। इंडिया इज बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट, इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वन टाइम यूपीएससी हैज आस्क अबाउट दैट कि जो एससीओ का जो बैंक है आपको पता है, तो उस मतलब एससीओ के बैंक से हमको मतलब फंड मिला है कभी कि नहीं मिला है, तो इंडिया को मिला था और यूपीएससी ने उसको पूछ लिया। तो इससे ही बना, इससे भी पूछ सकता है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इज इंडिया, इवन दैट कि इंडिया हैज डोन और इंडिया हैज support the global environment facility in the fund, but it has not received fund। तो नहीं भाई, इंडिया ने डोनेट भी किया है एंड इंडिया ने रिसीव भी किया है, बस इतना ही याद रखो, बाकी छोड़ो।
न्यूज कंटेंट जो भी था नहीं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 1.4 बिलियन पोल्यूशन वगैरह को, क्लाइमेट वगैरह को एड्रेस करने के लिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने फंड प्रोवाइड किया था। अब बताओ, इतना न्यूज पढ़ के आप मतलब क्या यूपीएससी इसमें से पूछ लेगा भाई? उसको तो पूछना जो उसके बैक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो पूछेगा ना। ओके, इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव रिपोर्ट, तो ये endorsed by the Global Environment Facility in 2022 with the Conservation International। तो इसके साथ ये रिपोर्ट जस्ट रिमेंबर दैट रिलीज करता है, ये आईआईपीसीएल के सपोर्ट में। आईआईपीसीएल मतलब इंडिजिनस पीपुल एंड लोकल कम्युनिटीज, इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, तो उनको सपोर्ट करता है। इंडिजिनस मतलब ट्राइबल पीपल को करता है सपोर्ट। ओके ओके, नेक्स्ट इज दैट, तो की हाईलाइट ये सब मतलब देख सकते हो इसी में। इंडिजिनस इंडिजिनस पीपल है 40, वो ऑन करते हैं 40% ऑफ टेरेस्ट्रियल जो प्रोटेक्टेड एरियाज है। मतलब जो इंडिजिनस पीपल हैं वही जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये जितने भी रिजर्व हैं उनमें जो 40% जो है वो इन्हीं के अंडर आता है। ओके, तो इंडिजिनस पीपल के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ऐसा नहीं कि नेशन का प्रोटेक्ट पूरा मतलब 40% लैंड इंडिजिनस पीपल नहीं, प्रोटेक्टेड एरियाज का 40% जो है प्रोटेक्टेड एरिया उन्हीं के द्वारा ऑन किया जाता है। अब देखो मतलब इंडिजिनस वी आर जनरली स्लेश एंड बर्न हो गया या ट्राइबल हो गया, वो इन्वायरमेंट को बहुत मतलब हार्म पहुंचाते हैं, स्लेश एंड बर्न करते हैं सेम साइड, बट वी गेट फॉरगेट इन देयर कंट्रीब्यूशन। दे इवन मतलब वो तो मतलब they used to worship the nature, they used to worship the forest, animal, all these things। तो वो जितना मतलब हानि नहीं पहुंचाते उससे ज्यादा तो उसका बेनिफिट होता है। अगर यही ट्राइबल ना हो तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट कैन मतलब माइनिंग वगैरह मतलब कर दे, तो दीज ट्राइबल पीपल विच रेज द वॉइस अगेंस्ट द माइनिंग एंड अदर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एक्टिविटीज। सो ये ट्राइबल पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इतना याद रखो, बाकी ये सब देख लेना, पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट इज दैट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम सबको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उनको पता है 2023 में ये फॉर्म हुआ था। तो इट वाज रेटिफाइड एंड लॉन्च इन द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन 2023। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो हो वो लॉन्च हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 7th असेंबली, मतलब ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर है, जो कि 2023 में लॉन्च हुआ। पर्पस क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, 1 मिनट, KMGF, ये KMGF क्या है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इट इज अंडर द यूएनसीबीडी। ओके, यूएनसीबीडी की कौन से कन्वेंशन में? तो COP 15 2022 में ये आया था, तो ये इसी को इम्प्लीमेंट करता है। ओके, तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इसके यहाँ देख सकते हो, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। तो फंड जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर है और इम्प्लीमेंट करता है एक कन्वेंशन को, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का पार्ट है। ओके, तो इतना याद रखना। तो ये 16 डेवलपिंग कंट्रीज इसके पार्ट है, कुछ डेवलप कंट्रीज भी पार्ट है, इसे देख लेना। जो डिसीजन होता है वो कंसेंसस बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं मेजोरिटी कंसेंसस होना चाहिए इस फंड को मतलब फंड प्रोवाइड करने के लिए। जो ट्रस्टी है वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक विल मैनेज द फंड्स। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस फंड का किसके अंडर है? तो वर्ल्ड बैंक है। रेटिफाइड किसके अंडर किया गया? ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर। ओके, बट मैनेजमेंट कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक को करेगा। प्रोवाइड किसको करेगा फंड? तो यूएनसीबीडी के प्रोटोकॉल को करेगा। कौन सा प्रोटोकॉल? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल। देखो मतलब कितना घुमाया हुआ है ना। ये तो ये ट्रांसपेरेंसी, कैपेसिटी बिल्डिंग देख लें, फंड अलोकेशन, ये सब भी आप देख सकते हैं। तो ये एक लाइन है, प्रायोरिटी फॉर सपोर्ट विल बी गिवन टू स्मॉल आइसलैंड स्टेट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो आइसलैंड, बिकॉज द मोस्ट इम्पेक्टेड फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज वर द नेशन विच वर द आइसलैंड कंट्रीज। ग्लोबल मतलब देखो आइस जो मेल्ट हुआ तो उनकी बहुत सारे लैंड जो हैं वो सबमर्ज हो गए। जो कम्युनिटीज हैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं वो हैम्पर हुई, उनको मतलब रिप्लेस करना पड़े। तो मोस्ट जो इफेक्टेड जोन है
क्लाइमेट चेंज का वो आइसलैंड कंट्रीज हैं। और उसके बाद लीस्ट डेवलप बिकॉज दे डोंट हैव अडेप्टेशन कैपेसिटी। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो उनके अंदर अडोप्टेशन कैपेसिटी नहीं है उतनी। ओके ओके, तो ये सभी आप बस इतना ही उसमें देखना था। तो अब देखते हैं ये टारगेट ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो मैंने जैसे बताया था, इट हैज फोर overarching goals to be achieved by 2050। तो ये 4 गोल हैं जो मतलब इस ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क हुआ यूएनसीबीडी में, मैं एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो इसने 4 गोल प्लेस किया है जो कि अचीव करना है 2050 तक। ओके, तो याद रख सकते हो कि 4 गोल है, गोल की बात है 2050 तक आराम से करें। और इसने 23 टारगेट दिए हुए, टारगेट डेली बेसिस पे होता है। देखिए जैसे देखो यूपीएस क्या है, गोल है, बट टारगेट डेली आपको पढ़ना है ना। तो जो 23 टारगेट है वो मतलब बहुत जल्दी करना होगा। तो टारगेट कितने तक, 2030 तक हमको करना है। पर इतना याद रखना है कि ये सब कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर है, जो कि यूएनसीबीडी के अंदर है, जिसको फंड प्रोवाइड करेगा कौन सा, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, जो कि रेक्टिफाइड किया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंडर, जो कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा या मॉनिटर किया जाएगा वर्ल्ड बैंक को। इतना याद कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इतने ही फास्ट में। तो ये यहाँ टारगेट इन 23 एक्शन जो है, 23 जो टारगेट हैं ग्लोबल टारगेट टू अर्जेंट एक्शन, जो वो अर्जेंट एक्शन मतलब बहुत जल्दी करना। लेकिन अगर आप डेली नहीं पढ़ते हो तो आप धीरे धीरे आपका जो गोल है वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। डेली टारगेट नहीं कंप्लीट होगा तो गोल तो वैसे नहीं होगा भाई, क्योंकि टारगेट से ही जब टारगेट टारगेट मतलब सारे टारगेट कंप्लीट होंगे तो गोल खत्म, गोल हो ही जाता है। तो इसमें से मुझे क्या आपको मतलब बताना था कि जो ये टारगेट है उसमें एक टारगेट जो है आपको ये वन टर्म में यूपीएससी पूछ सकता है कि 30-30 डील क्या है, तो ये किसके अंडर है, इसे पूछ सकता है। तो अगर 30-30 डील पूछेंगे तो हम यूएन सीबीडी लगाएंगे कि सीबीडी के अंडर है। कौन से प्रोटोकॉल के अंदर, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंडर है। ओके, तो 30-30 का मतलब क्या है, जो 30% लैंड है, लैंड वाटर है, मरीन है, कोस्टल इकोसिस्टम है। तो यहाँ अगर उससे वो पूछे कि हाँ केवल जो मरीन इकोसिस्टम है उसको मतलब प्रोटेक्ट करना, नहीं लैंड भी है, याद रखना लैंड एंड वाटर भी है, वाटर इनलैंड वाटर भी है, मरीन है, कोस्टल इकोसिस्टम है, इन सबको विल बी प्रोटेक्टेड बाई 2030। तो 30% लैंड वाटर कोस्टल कम्युनिटी कोस्टल इकोसिस्टम बाई 30 प्रोटेक्ट करना है, इतना आप याद करना। फिर ये जो इन्वेजिबल एलियन स्पीसीज है इनको 2050 तक रिड्यूस करना है। ओके, तो ये सब देख लेना बाकी आप। बट व्हाट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट आई जस्ट टोल्ड यू, रिड्यूसिंग बाई, ये देख लो, रिड्यूसिंग बाई 500 बिलियन एनुअल हार्मफुल गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज को भी ये कहता है कि कम करो भाई, गवर्नमेंट सब्सिडी ना दो, ये क्लाइमेट चेंज को और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। तो 500 बिलियन सब्सिडी कम करेगा ये। ओके, तो याद रखो बस, मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट क्लोज टू बायोडाइवर्सिटी फंडिंग गैप बाई 200 बिलियन इन द ईयर, इन अ ईयर। ओके, सो देखते रहना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़। यहाँ देख लिया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, तो नॉट लीगली बाइंडिंग, एक बहुत अच्छा टर्म मिल गया भाई, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये रिप्लेस करता है एची बायोडायवर्सिटी टारगेट को। कब हुआ, 2020 में सीओपी 15 में हुआ इन मॉन्ट्रियल, यूनाइटेड नेशन यूएनसीबीडी का पार्ट है। इतना याद हो जाए बहुत है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना भूलना कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और एची बायोडायवर्सिटी टारगेट तो यूएनसीबीडी के अंडर था, उसी को इसने रिप्लेस किया है। ना स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड किसके अंडर काम करता है, तो यूएनएफसीसी के अंडर, इज द ओनली एडेप्टेशन फंड ओपन टू ऑल वल्नरेबल कंट्रीज। तो याद रखना, फाइनेंस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, सब याद रखना, क्लीन डेजर्टिफिकेशन वगैरह सब में ये फाइनेंस करता है। तो क्लाइमेट स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। ओके सॉरी, नेक्स्ट इज द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडॉप्टेशन। सो हमको प्रायोरिटी देना है किस पे, एडेप्टेशन पे, स्ट्रेटेजिक पे। तो it was to show how adaptation planning and assessment could be practically translated into full scale project। ओके, तो ये एडेप्टेशन को प्रमोट करेगा, इतना ही याद रखो। ओके,
सो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड, हमने इसको देखा था कि ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूएनईपी, इसके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड established by these organizations. It is implement multilateral environment agreement. It serves as a financial mechanism to UNFCCC के प्लीज में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड है जो वो फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस प्रोवाइड कराता था यूएनएफसीसी को भी। इसके पहले हमने देखा स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट वो यूएनएफसीसी के अंडर है। तो याद रखो ये सारे फंड भाई कहीं नहीं कवर है, आप पढ़ लोगे इट विल बी रियली हेल्प टू यू। फिर लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड, फाइनेंस नेशनल मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज को उनकी जो नेशनल एडाप्टेशन प्रोग्राम है उनको फाइनेंस करेगा, इतना ही याद रखो। तो अब तक जो हमने देखा था वो सारे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड फंड थे। ओके, अब हम देखेंगे यूएनएफसीसी फंड। तो पहले हमने देखा था स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, वो भी यूएनएफसीसी के अंडर था अभी उससे पहले। तो बट वो यूएनएफसीसी के अंडर था, बट उसका जो मॉनिटरिंग वगैरह था वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कह सकते हो वो देखता है, इसलिए वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, याद रखो। ग्रीन क्लाइमेट फंड वर्ल्ड बैंक और इन सब के अंडर नहीं है, यूएनएफसीसी के अंडर है। तो इट वाज फर्स्ट मेंशन इन कोपेनहेगन अकॉर्ड इन सीओपी 15। ओके, तो इसमें ये फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था। इट वाज फॉर्मली इनिशिएटेड ड्यूरिंग यूएनएफसीसी कैंकन समिट 2010। कैंकन समिट जो हुआ था यूएनएफसीसी का 2010 में, उसमें ये इनिशिएट मतलब स्टार्ट हुआ ये। ओके, इनिशिएटेड फर्स्ट टाइम इन दैट समिट। 1 मिनट, हम यूएनएफसीसी के अंडर जो फंड है उसको देख रहे थे, और पहला मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ग्रीन ग्रीन क्लाइमेट फंड है, जीएसएफ है, जो कि मतलब फर्स्ट टाइम मेंशन होता है सीओपी 15 कोपेनहेगन में, और ये फॉर्म हुआ जो कैंकन एग्रीमेंट 2010 में यूएनएफसीसी के। और इट वाज अडॉप्टेड एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। अभी यूएनएफसीसी तो फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा यूएनएफसीसी को। और ने क्या देखा कि ये टेम्प्रोरी ट्रस्टी जो है इसका वो होल्ड करता है वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है सोंगडो, इंचिन, साउथ अफ्रीका। जस्ट रिमेंबर दैट, इंचिन, साउथ अफ्रीका। एडेप्टेशन फंड, सो ये भी याद रखना कि दो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द यूएनएफसीसी क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसको अडॉप्ट किया, मतलब फॉर्म हुआ था 2005 के अराउंड। यू कैन से इट इज started और रेक्टिफाइड बाई ऑल द कंट्री। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर एक फंड था एडॉप्टेशन फंड। तो हमने देखा ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडॉप्टेशन फंड, बोथ वर अंडर द यूएनएफसीसी। इसका भी ट्रस्टी जो फंड जो देखता है वर्ल्ड बैंक ही देखता है। इट वाज एस्टेब्लिश टू फाइनेंस कंक्रीट एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट, मतलब मेनली एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करेगा। डेवलपिंग कंट्रीज पार्टी ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ओके, जस्ट मतलब इतना याद रखो कि जो ये अडाप्टेशन फंड है वर्ल्ड बैंक के अंडर नहीं है भाई, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से कंफ्यूज करेगा ये। ग्रीन क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो कंपनी वर्ल्ड बैंक के अंडर नहीं है, या यूएनसीबीडी के अंडर नहीं है। इसका ट्रस्टी भले वर्ल्ड बैंक मैनेजमेंट करता है। ओके ओके, नेक्स्ट यूरोपियन कमीशन फंड। कौन से यूरोपियन कमीशन के अंडर फंड है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एडमिनिस्टर्ड बाय द यूरोपियन कमीशन। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस को इसके द्वारा यूरोपियन कमीशन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, रेगुलेट किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्लाइमेट चेंज को ऑफ कोर्स उस पर वर्क करेगा जो कि पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज है ना, याद रखो। तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड जो है यूएनएफसीसी के अंडर उसको प्रोवाइड कराता है, जो कि जिसका ट्रस्टी वर्ल्ड बैंक देखता है। और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस जब आ जाएगा तो यूएनएफसीसी में ग्लोबल इन्वायरमेंट इफिशियंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड। इट इज स्ट्रक्चर्ड एज अ फंड्स ऑफ फंड मतलब ये फंड प्रोवाइड कराएगा वेरियस फंड को, लाइक ये फंड कैन प्रोवाइड टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को प्रोवाइड करा सकता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज फंड को प्रोवाइड करा सकता है। तो ये सब इसको फंड प्रोवाइड कराएगा, कोई डायरेक्ट ये फंड नहीं देगा। इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बस इतना ही याद रखो इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके किसके अंडर है ये आना चाहिए, कि ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी रिन्यूएबल एनर्जी फंड है वो यूरोपियन कमीशन के अंडर।
ओके, अब देखते हैं कि यूएनडीपी के अंडर कौन कौन से फंड है। ईएमडीजी अचीवमेंट फंड, जो कि स्टेब्लिश किया गया स्पेन है यूएनडीपी के हेल्प से। ओके, एडमिनिस्टर कौन करता है, तो यूएनडीपी करता है। ये कैसे, मल्टी डेवलपमेंट ग्लोबल अचीवमेंट फंड। ओके, ऐसे तो मल्टी ग्लोबल डेवलपमेंट अचीवमेंट फंड स्टेब्लिश बाय द स्पेन। यहाँ पर स्पेन याद रखना, कंट्री चेंज कर सकता है यूपीएससी कि जो एमडीजी अचीवमेंट फंड है वो स्पेन नहीं अदर कोई कंट्री यूएसए दे सकता है, या फिर और जो बहुत फेमस कंट्रीज हैं स्पेन के अलावा उन सबको, जर्मनी जापान ये सब दे सकते हैं, तो नहीं, ये स्पेन और यूएनडीपी भी याद रखना। यूएन रेड फंड क्या है, तो यूनाइट थ्री established by the three United Nations agency UNEP, UNDP या FAO, एडमिनिस्टर्ड बाय यूएनडीपी। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेट किसके जाता है, यूएनडीपी के अंदर किया जाता है, लेकिन इस्टेब्लिश किया गया तो ये यूएनईपी यूएनडीपी एफएओ। बस इतना ही याद रखो, ज़्यादा क्या है, याद भी नहीं होगा उससे। इट सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री रिड्यूसिंग इमिशन, और 9 इनिशियल कंट्री जो थी वो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका से हैं। इतना याद हो जाए तो ठीक। बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस, सो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस में कौन कौन से फंड आएंगे, नगोया, COP10 और CBD। तो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस का स्टेब्लिश हुआ तो नगोया में स्टेब्लिश है। नगोया हमको पता है CBD का प्रोटोकॉल है, और COP10 में स्टेब्लिश हुआ इन इंडिया बाय इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ये देखा जाता है, इट इज होस्टेड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किसके अंडर आती है, तो जो एक्ट है हमारा CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002, उसके अंडर ये आती है। तो इसके अंदर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड भी आता है, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट कमेटी भी आती है। तो याद रखना, यूएनडीपी इंडिया के द्वारा मैं इसको बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस जो है इसको मैनेज किया जाता है, तो याद रखना। तो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस जो है वो इंडिया से रिलेटेड है, ये स्टेब्लिश हुआ था नगोया में। एंड इसको जो इट इज स्टेट बाय द एनबीए, ये सब देख लेना, पीडीएफ देख लेना, उसमें आपको मिसलेनियस फंडिंग मैकेनिज्म। सो लाइक अब हम देखें जो ये एडेप्टेशन फॉर स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एक एक लाइन में याद रखो, स्मॉल होल्डर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ओके, एंड if you want I should make the small very crisp note and small only the important topic I will make on my own। मैं खुद एफर्ट लगाऊंगा, बनाऊंगा और उसको आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी कर दूंगा, बट आप कमेंट करना यहाँ ये। एंड कांगो बेसिन फॉरेस्ट फंड, कांगो बेसिन फॉरेस्ट फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, एंड इट इज टेक अर्ली एक्शन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन कांगो बेसिन रीजन। तो कांगो बेसिन फॉरेस्ट फंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अमेजॉन फंड, ये न्यूज में था, इट इज अ प्राइवेट फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्राजीलियन डेवलपमेंट बैंक। तो अमेजॉन ब्राजील कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हें वर्ल्ड बैंक एंड इसके अंदर है। एंड इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडोनेशिया डेवलपमेंट, तो वहाँ की जो एजेंसी होगी, याद रखना ये वर्ल्ड बैंक वगैरह के अंदर नहीं है, इतना ही बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज फॉर फंड फॉर एशियन डेवलप, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर होगा, सिंपल सी बात है। ये याद रखें 2008 में, अगर याद है एक एक वर्ड एसोसिएशन। नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस, इट इज वर्क ऑन सब्सटेंशियल मेथोलॉजी टू अलाइन पोर्टफोलियो विद नेट जीरो पेरिस टारगेट। 29th मेंबर्स हैं इनमें, और कम्युनिटी सोवरेन वेल्थ फंड भी इसके पार्ट होते हैं, कंट्रीज भी हैं, इंश्योरेंस फंड कंपनीज। नेट जीरो एसेट ओनर अलायंस, ये ऐसे इसमें पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक अगर किसी के अंदर आता है या किसी की वर्ल्ड बैंक वगैरह के अंदर नहीं, है इसके सबके अंदर। अब जो ये नेक्स्ट है, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके, सो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, it is a global partnership of government, business, civil society, indigenous people। I think it is asked in the UPSC। so ऐसा इसमें पूछे कि इसमें नेशन ओनली या नेशन कंट्रीज ओनली या डेमोक्रेटिक नेशन ओनली पार्ट कर सकते हैं, या फिर ये ओनली एक एनजीओ या सिविल सोसाइटी पार्ट ले सकती है, तो नहीं, ये एक होलिस्टिक है। इट फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमिशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ओके, इट मेनली रेफर टू एज अ रेड प्लस प्लस
कॉमनली रेफर्ड एज रेड, जो प्लस है उसके अंदर, तो रेड प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एमिशन थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन। तो डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को कम करके एमिशन कम कर, तो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि इसमें सिविल सोसाइटी, बिजनेस, गवर्नमेंट, इंडिजिनस कम्युनिटी सब पार्ट में ले सकते हैं। ओके, 1 मिनट। द लीफ coalition lowering emission by accelerating forest alliance. Okay, it was launched by an initial group of government Norway, UK and US, and leading company like Amazon. तो याद रखना है कि ये कोई वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक या ग्लोबल फैसिलिटी, जितना भी हमने फंड देखा उसमें नहीं आया था। लोअरिंग इमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, फॉरेस्ट फाइनेंस मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस करेंगे कितना, इट एम टू मोबिलाइज 1 बिलियन इन फाइनेंस टू सपोर्ट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज टू मूव rapidly towards reducing emission and deforestation. तो लाइक देखते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बोलती हैं कि हमारे मतलब देखो, जो जितनी भी वो डेवलप कंट्रीज हैं अपर रीजन के, लाइक यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब के अंदर तो उतने फॉरेस्ट है नहीं। एंड जो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं ये बहुत ही फॉरेस्ट हैं, जो फौना एंड फ्लोरा रिच कंट्रीज है। तो अगर ये फॉरेस्ट चले जाते हैं तो बहुत नुकसान होगा इन्वायरमेंट को। तो इसके लिए ये कहती है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो यूके यूएस ने इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया, हम फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे कि आप ये फॉरेस्ट डिग्रेडेशन मत करो, आप ये लैंड का यूज मतलब किसी एग्रीकल्चर के लिए या इसके लिए फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है, तो कहेंगे ये मत करो, हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, आप अदर सेक्टर में लाइक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में आप डेवलप हो जाओ, या हम फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे कि आप क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो रेदर देन टू बर्निंग द बायोमास। तो ऐसा ये फंड है। तो ये याद रखना कि ये लीफ कोलेशन जो है वो यूके यूएस के द्वारा किया गया है। ओके, ग्रीन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, यूपीएससी के लिए, तो ये पता होना चाहिए। पूरा देखेंगे इसको, बहुत अच्छे से देखेंगे। दे आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब टेकिंग द लोन, सिंपल थिंग, लाइक नॉर्मल बॉन्ड्स बट यूज फॉर इन रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अगर हम इसमें कहें कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज किया जा सकता है इसके फंड को, जो इसके थ्रू फंड लाया जाएगा, जो पावर प्लांट है नहीं, तो केवल ये रिन्यूएबल एनर्जी में यूज किया जाएगा इस फंड, इसके द्वारा जो भी फाइनेंस प्रोवाइड होगी या जो भी मनी प्रोवाइड, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फॉर सर्विस दैट आर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। द बॉन्ड इज वॉलंटरी, मतलब ऐसा नहीं कि कंपल्सरी है। Okay, and may be issued by financial institution, government, companies, and a company to raise fund for a defined period। मतलब वो मतलब यूपीएससी में क्या जाए, ये जो ग्रीन क्लाइमेट बॉन्ड है या ग्रीन बॉन्ड है वो ओनली गवर्नमेंट इशू करेगा, या फिर ओनली जो बैंक्स हैं वो इशू करेंगे, नहीं भाई, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ऑल दीज मतलब सभी इशू कर सकते हैं इसको, कोई भी मतलब इशू कर सकता है इसको। और ये वॉलंटरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि देखो भाई जितने भी बैंक हो तुम सबको इशू करना पड़ेगा, या जितने भी इंडस्ट्रीज हो तुम सबको इशू करना पड़ेगा ग्रीन बॉन्ड। नहीं, ये वॉलंटरी, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। द इंडियन ग्रीन बॉन्ड मार्केट, ये भी न्यूज में था। तो यस बैंक जो है इज अ फर्स्ट टू इशू द ग्रीन बॉन्ड इन इंडिया इन 2015। तो ये पीसीएस वगैरह के लिए याद रखना, यस बैंक जो है वो फर्स्ट है जो ग्रीन बॉन्ड को इशू किया है। इट वाज फाइनेंस रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, वही है। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड मतलब जो गवर्नमेंट के पीएसयू या गवर्नमेंट इशू करे। गवर्नमेंट इशूड फाइनेंशियल ईयर 2024 फर्स्ट ट्रांच सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड अनाउंस इन 2023 बजट। तो 2023 बजट में सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का अनाउंस हुआ था। तो अब इसे देख लेते हैं कि क्या है सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड, क्या इसकी प्रोविजन। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, पहले से पता है हमको, इन्वायरमेंटल के लिए पता है। इंडिया इशूड फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन 2015, हमको पता है यस बैंक ने। द यूनियन बजट 2023 अनाउंस द इश्यूज ऑफ सोवरिन ग्रीन बॉन्ड। तो ये याद रखना कि बजट में ये 2023 में मेंशन था सोवरिन ग्रीन बॉन्ड को इशू करने के। इंडिया इज फाइनल इंडियाज फाइनल सोवरिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क आउटलाइंस 9 जो 9 कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के उनको फाइनेंस करने के लिए ये इशू किया जाएगा। याद हो जाए, नहीं तो याद हो जाए, नहीं तो कोई बात। गवर्नेंस प्रोसेस फॉर सोवरिन ग्रीन बॉन्ड, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट सेलेक्ट
द प्रोजेक्ट लाइक जैसे हम देखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री क्लीन एनर्जी एनर्जी के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेगी इस बॉन्ड के अंडर कि हाँ ये जो बॉन्ड है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ये क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है इसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के अंडर। ग्रीन फाइनेंस कमेटी जो होगी वो ओवरसी करेगी, वैलिडेट डिसीजन मेड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ओके, तो ये ग्रीन फाइनेंस एक कमेटी फॉर्म होगी जो कि जो भी डिसीजन किया जाएगा मिनिस्ट्री के लिए, उसके डिपार्टमेंट के लिए कि हाँ ये प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रीन फाइनेंस चाहिए, वो ये ग्रीन फाइनेंस कमेटी रेगुलेट करेगी। प्रोसीड आर डिपॉजिट into the consolidated fund of India and managed by the Ministry of Finance Debt Management Cell. मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब ये ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से मतलब वो क्रिएट किया जाएगा वहाँ, इसको ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू कर रही है भाई। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नमेंट जो भी फंड पब्लिक से लाएगी वो इसी फंड में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाए। ऑडिट कौन करेगा, जो कि बहुत बार इज कंडक्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बहुत ही ये पूरा ही मतलब ये टॉपिक तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट नोटिस से आपको बनाकर अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। एलिजिबल कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट अंडर फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं देखते हैं। 1 मिनट फर्स्ट आई शुड डिलीट बस। तो एलिजिबल कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट जो हमने कहा था 9 प्रोजेक्ट है इनको। तो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी में एम टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन एंड इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर। उसमें भी लाइक कैसे एनर्जी एफिशिएंसी, लाइक हमको पता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत एनर्जी यूज करता है, तो हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी लाएंगे जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी कंजम्पशन कम होगा तो एमिशन भी कम ही हो जाए। या फिर क्लीन ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर, मतलब वाटर के लिए भी याद रखना वाटर मैनेजमेंट में फंड यूज किया जाएगा, क्योंकि वो क्लीन टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल केवल पोल्यूशन पे बात होगी या नहीं, पेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन सब में ये फंड यूज किया जाएगा। पोल्यूशन, ग्रीन बिल्डिंग मतलब हम ऐसा बिल्डिंग्स मतलब करेंगे जिसके अंदर मतलब वो जो बिल्डिंग होगी उसको हम सस्टेनेबल वे में, मतलब उसका जो इंजीनियरिंग होगी सस्टेनेबल होगी, और उसके मतलब लाइक अगर कुछ प्लेस खाली है तो वहाँ हम पेड़ पौधे लगा देंगे, उसमें प्लांटेशन कर देंगे, छोटे छोटे पौधे जो आते हैं उनको प्लांटेड करेंगे। और दिस टाइप ऑफ बिल्डिंग मतलब हम ये बिल्डिंग को हम इकोलॉजिकली जो होगा सस्टेनेबल बनाएंगे और इसके बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड यूज, तो लिविंग नेचुरल रिसोर्स का है उसको मैनेज करेंगे, लैंड पे भी मैनेज करेंगे, प्रोजेक्ट दैट प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिस मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड। ओके, देन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, तो these fund will use in these project related concept। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या होता है? इंडियन एक्सिम बैंक, एक्सिम इज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, listed 1 billion 10-year sustainability bond on the sustainable bond market platform at the London Stock Exchange. Sustainability bonds are created to raise funds for environmentally and socially responsible projects. These bonds combine the characteristic of green bonds and social bonds. So these bonds will be used for the both, either for the clean energy or either for the social bonds. Okay, rhino bond सिंपल है, राइनो कंजर्वेशन को प्रमोट करने के लिए। द राइनो बॉन्ड सपोर्ट साउथ अफ्रीकन इनिशिएटिव प्रोटेक्ट ब्लैक राइनो एंड असिस्ट लोकल कम्युनिटीज। तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ब्लैक राइनो, अब हमको पता होना चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट राइनो अफ्रीका में। द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड आल्सो नोन एज राइनो बॉन्ड is an innovative financial tool that direct investment towards achieving conservation goals. The World Bank priced the wildlife conservation bond to aid South Africa in conserving endangered species. Okay, तो हम फंड कवर कर चुके हैं। सो इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।